Yes, guys. Okay. So in this session, we are going to discuss Java program structure. Very important to understand. And please note it down whenever you feel you wanted to note it. Please note it down. Okay. Typically, guys, initially Java is a difficult language to go with. I can understand that. Why I'm saying that? Because we have a lot of keywords, and when we write our first Java program, we have to go through. I will say we have to go through the like a line of codes or the keywords which we doesn't understand. Means initially we don't know anything, and when we write a line of code initially, okay, uh, there are some keywords which we have to go through, and initially it is difficult for us to understand that. Later on you will understand that as we are going as we will go from basic to this from basic, and we are going to discuss some concept. Then we are going to discuss then you are going to understand that okay, so this is what is the beginning of that, but initially you will not understand this. So that is what we can say. Java is like a difficult language to learn. uh Fine, it doesn't mean we are not we can't learn. We can learn, and we'll understand everything slowly. So what is Java program structure? So Java program structure is like, if you wanted to write a line of code, if we wanted to write a line of codes in Java, we have to follow some structure. You have to follow some structure if you wanted to write a line of code in Java. So we are going to discuss structure in, sorry, Java program structure. Okay, Java program structure. So this is the structure we have to follow. अगर आप ये follow नहीं करेगा, आपको आएगा error. You will get a error. So that's why we have to follow this structure. अगर हम इसको follow नहीं करते, आपको error देखने को मिलेगा. So what is a Java program structure? So Java say, hey, if you wanted to write a line of code, if you wanted to learn, and if you wanted to write a line of code in Java, you have to follow some structure. So what is the first point? What is the first structure we have to follow? Means what is the structure? Java say, okay, so here is my structure. What you have to follow? Okay, but what is the structure? Java say, first you have to create a class. First is create a class. Okay, first is what, guys? Create a class. क्या होता है? Create a class. क्रिएट अ क्लास. देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड में प्रोग्राम किस में डिवाइड होता है? फंक्शंस में, राइट? अभी हमें फंक्शंस नहीं पता है, वी डोंट नो फंक्शन, बट फाइन, समझो. प्रोसीजरल ओरिएंटेड में जो प्रोग्राम है किस में डिवाइड होता है? फंक्शन में. किस में डिवाइड होता है? अब फंक्शन क्या होता है आगे जाके धीरे धीरे समझ में आएगा, बट अभी समझो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड में हमारा जो प्रोग्राम है वो किस में डिवाइड होता है? यस गाइस, फंक्शन. Functions. किस में डिवाइड होता है? रिमेनिंग राउटिंग. Functions. पॉप. ओके, सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉल्ड एज पॉप. लास्ट टाइम हमने स्टडी देखा प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट में होता क्या है डिफरेंस. तो अब थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं. सो प्रोसीजरल में जो होता है, जो आपको प्रोग्राम होता है वो फंक्शंस में होता है, फंक्शंस में डिवाइड होता है. सो आई विल जस्ट राइट उप्स. पीओपी का मतलब होता है पॉप, एंड लाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड, उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो जो आपका लाइक जो भी प्रोग्राम होता है आपका इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस. कि जो भी जावा में प्रोग्राम होता है, सॉरी, जो भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड में प्रोग्राम होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लाइक सी प्रोग्रामिंग, लाइक एग्जांपल, एग्जांपल विच इज सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो सी में जो प्रोग्राम होता है वो फंक्शंस में डिवाइड होता है. अभी फंक्शंस नहीं पता है, बट समझो ऐसा कि होता है, क्या होता है आगे धीरे धीरे समझेगा, एक एक इसमें नहीं समझेगा. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस और मॉड्यूल्स. समझ में आ रहा है गाइस? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम किस में डिवाइड होता है? मॉड्यूल्स में. किस में डिवाइड होता है? यस गाइस, मॉड्यूल्स. और Modules. प्रोसीजरल में किस में डिवाइड होता है? फंक्शंस. अब ये पता Functions. नहीं, पता, बस ऐसा ऐसा समझो बस कि अच्छा होता है, क्या होता है धीरे धीरे समझेगा. फंक्शन में
फंक्शन डायरेक्टली नहीं पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते, बट अच्छा वो भी आएगा, फंक्शन में आगे जाके आएगा ही, आपको समझना पड़ेगा फंक्शन। प्रोसीजरल ओरिएंटेड पे हमारा जो प्रोग्राम है वो फंक्शंस में डिवाइड होता है, और लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा जो प्रोग्राम है वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल्स का मतलब होता है क्लास। क्या होता है? क्लास। समझ में आ रहा है मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है गाइस? क्लास होता है। क्लास। दैट्स व्हाई जावा से फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? क्लास क्रिएट अ बनाना। क्लास। यस। फर्स्ट स्टेप जावा का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको क्लास बनाना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको बनाना है क्लास। सो जावा बोलता है हे यू हैव टू क्रिएट अ क्लास, यू कांट राइट अ डायरेक्टली लाइन ऑफ कोड। डायरेक्टली मींस यू कांट डायरेक्टली राइट अ लाइन ऑफ कोड। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? क्रिएट अ क्लास। क्या होगा? क्रिएट अ क्लास। सबसे पहला स्टेप क्या होगा गाइस? वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. Okay. So okay, we have did like a we have to create a class, but it is not all we have to follow. We have to follow one more thing. सबसे पहले जावा बोलता है hey just create a class. Okay. So we will create a class. Okay, done. We have created a class. Just assume we have created a class. But Java say no. It's not all you have to do. You have to again follow one more structure which is called as a you have to create a method inside a class. Okay. जब last time किसी ने पूछा था मेथड वर्सेस फंक्शन क्या होता है, create a method inside a class। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू क्रिएट क्लास। समझ में आ रहा है गाइस? यस। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास एंड इनसाइड दैट वी हैव टू क्रिएट अ मेथड। सो दिस इज द जावा, दिस इज कॉल्ड एज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो एंड इनसाइड दिस, उसके बाद में आपने क्लास बना लिया, क्लास के अंदर मेथड बना लिया, उसके बाद में यू कैन राइट अ कोड, लाइन ऑफ कोड इनसाइड अ मेथड। ओके। तो सबसे पहले आपको क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास के अंदर आपको बनाना पड़ेगा मेथड, और मेथड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा जो भी वॉट एवर यू वांटेड टू राइट। सो दिस इज द जावा प्रोग्राम इज लुक लाइक। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू क्रिएट गाइस, व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? क्रिएट अ क्लास। सबसे पहले क्या होता है? यस गाइस। Create a class, यस। then create a method inside the class. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ राहुल, व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? यस राहुल। राहुल, आर यू हियर? कैन यू हियर मी? व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? बताओ जल्दी। यस राहुल, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, then after that we have to create a method inside a class, and then you can write algorithm. You can't directly write a code, you can't directly write, you have to follow the structure। अगर आप उसके बाद में आप कोड लिख सकते हो, डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते। सो इट इज कॉल्ड एज अ जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो। ओके। सो मुझे समझ आ गया कि जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर फर्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग गाइस इन जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट इज क्रिएट अ क्लास। फर्स्ट इज क्रिएट अ क्लास रिमेनिंग। हाँ संतोष, राहुल, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? First step is create a class, क्रिएट अ क्लास। सेकंड इज create a method inside the class. हाँ, and then we can write a algorithm inside a method. Once again, first is, First is create the class, second is, second method create a method fir- inside the class, first is, then create a class, second, create a method inside the class, second, create the method inside the class and then write first, the program. first, Create a class, second, create a method first, inside the class, first, first. Yes, Santosh. First, create a class, sir. clear the card. Second, Yes. Create a method inside the class. हाँ, and then we can write algorithm, right? Okay, जो भी लिखना है we Yes. can write. Directly we can't write. Okay, so we have like okay, so we have understand कि हमें सबसे पहले क्लास बनाना है, उसके अंदर मेथड बनाना है, then उसके अंदर हमें जो भी लिखना है वो लिखना है। Now the question is arises how to create a class. Okay, how we can create a class, क्योंकि ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा कि हमें क्लास तो बनाना है बट किस तरह से, how we can create a class? If you wanted to create a class, सबसे पहले लिखना है क्लास, क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है? सो इट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास। क्लास
क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है? यस संतोष, इज दैट क्लियर? Yes, yes, yes. क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इट इज व्हाट, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। Uh, create the class by opening the curly braces नहीं and नहीं नहीं नहीं, closing it. हाउ टू क्रिएट अ क्लास, क्लास नेम, राइट? क्लास क्लास नेम, हाउ टू क्रिएट अ क्लास नेम Class class name. ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है? वंस अगेन, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, ये है, ये दैट इज वी आर सीन हाउ टू क्रिएट अ क्लास। ये है हाउ वी कैन क्रिएट इट। समझ में आ रहा है? हाउ टू क्रिएट अ क्लास देन, Class name. Opening brace, closing brace. क्लास, सबसे पहले क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास सबसे पहले क्लास, देन क्लास नेम। समझ में आ रहा है? क्लास, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है? हाउ टू क्रिएट अ क्लास। Yes. Class name. Opening brace, closing brace. वंस अगेन, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, Class name. Opening brace, वंस अगेन, हाउ टू closing क्रिएट अ brace. क्लास। Class name. Opening brace, closing brace. व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? फर्स्ट इज, Uh, First you create the आप class, then संतोष, create the. इफ यू फील कि कुछ लिखना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन, हाँ, डोंट वरी। ठीक है? Okay. इफ यू फील Yes, yes. एंड एक बुक जो है वो बना के रखना, बिकॉज जो भी हम पढ़ेंगे तो आपको उसमें यू कैन टेक अ नोट्स। समझ में आ रहा है? यस सर, इसके हाँ वीडियो भी मिलेंगे ना सर, वो मतलब रिकॉर्डेड, सर ने बोला हाँ था हाँ कि हाँ, वे रिकॉर्ड. बिल्कुल 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 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ, तो फर्स्ट इज, First is create the class, then सेकंड इज, create the method inside the class, हाँ, and then हाउ टू, write the program. वेरी गुड, देन हाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास। Then class name, the opening brace, closing brace. वेरी गुड, वन सेकेंड, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। Class name, opening brace, closing brace. वन सेकेंड, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। First of all, write the class, then class name, then हाँ, opening brace, closing brace. देखो हमें हमें तैयारी इस तरह से करना है संतोष, कि क्वेश्चन आया तो एक सेकंड पे भी लगना चाहिए आंसर आने में। ठीक है? Yes, sir. हाँ, सो दैट इज द प्रिपरेशन वी वांट, आई वांटेड, we have to go through. Okay, I wanted to like make you that much capable कि आपको क्वेश्चन आए तो इधर से आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, हाँ, definitely बनेंगे सर. ओके, चलो, फर्स्ट इज क्रिएट अ क्लास, फर्स्ट इज, First is create the class, हाँ, then create the method inside the class, and then write the program वेरी गुड, code. देन हाउ टू क्रिएट अ क्लास। Create the class name, opening brace, closing brace. हाँ, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, हाउ टू क्रिएट अ Yes. क्लास। Class name, opening brace, closing brace. वेरी गुड, सो इट इज, ये क्या है, व्हाट वी हैव डिड, ये क्या है, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, व्हाट इज दिस, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, राइट? समझ में आ रहा है Yes, संतोष? yes, sir. देन Yes. चलो, फर्स्ट स्टेप इज डन, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, तो फर्स्ट इज डन। सेकंड, वी हैव टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। अब मेथड किस तरह से लिखते हैं, देखो, इनिशियली मैंने बोला जावा इज अ, इनिशियली इट इज अ लाइक अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स which we have to go through initially and you will not understand it. Okay, so how to create a method, so we have to create a method inside this class, right? हमें तो पता है कि हमने क्लास के अंदर बनाना है ना मेथड। समझ में आ रहा है? तो ये क्लास का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो हमारा ये क्लास हो गया। ओके, ये हो गया क्लास, और ये हाउ टू क्रिएट अ क्लास। ठीक है? तो हो गया क्लास। अच्छा, मेथड किसके अंदर बनाना है? अंदर. क्लास के अंदर बनाना है, वेरी गुड। क्लास के अंदर बनाना है तो क्लास के अंदर बनाते हैं, तो क्लास का ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके अंदर बनाते हैं मेथड। देन हाउ टू क्रिएट अ मेथड। सर, हर एक प्रोग्राम करते समय हर टाइम हमको क्लास करना पड़ेगा क्या? बनाना ही है, वो जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, आपको प्रोग्राम लिखना है तो ये करना ही है, नहीं तो आप प्रोग्राम लिख नहीं सकते, एरर आएगा। ओके, ये ठीक. करना ही है, ऐसा है जावा का, जावा बोलते हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो हाउ टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, सो टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, हियर हाउ वी कैन क्रिएट पब्लिक स्टैटिक void main, okay, public static void main, then string args
ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। सो इट इज हाउ वी कैन, देखो इनिशियली मैंने बोला जावा इज डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, देखो इसमें अभी ये वी हैव क्रिएटेड अ मेथड, एंड इनसाइड दिस मेथड देयर आर अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, यू कैन सी। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। ओके, let's try to understand this. So here we have this. ओके, सो वी हैव दिस क्लास। तो क्लास ये हो गया हमारा क्लास, क्लास के अंदर यानी सबसे पहले ये क्लास है, क्लास है लाइक क्लास, क्लास नेम। उसके अंदर हमने क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, सारा का सारा स्मॉल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, हाउ टू क्रिएट अ मेथड संतोष, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हाउ टू क्रिएट अ मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसीलिए मैंने बोला देखो ये देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स, दिस पब्लिक इज आल्सो कीवर्ड, वॉइड इज आल्सो सर कीवर्ड। एक साथ वो लिखने के क्या मतलब एक साथ है क्या वो? हाँ एक साथ है, ओके। यानी स्पेस है, हर इसमें स्पेस है। यानी सबसे पहले पब्लिक लिखना है, फिर स्पेस, फिर स्टैटिक्स, फिर स्पेस, फिर वॉइड, फिर स्पेस, फिर मेन। देखो इसीलिए हम जावा को बोलते हैं कि इट इज इनिशियली डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स है। देखो ये पब्लिक है, यहाँ पे स्टैटिक आ रहा है, ये वॉइड क्या है, ये मेन क्या है, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। तो इनिशियली इसीलिए ये डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है इनिशियली समझने के लिए। अच्छा ये है क्या, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए स्टार्टिंग में इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझेगा अच्छा पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझेगी जब हम आगे आगे बढ़ेंगे। इनिशियली आपको ये सारी चीजें कभी नहीं समझ में आएगी और समझना भी नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हाउ टू क्रिएट अ क्लास विच वी हैव सीन, लाइक हाउ टू क्रिएट अ क्लास। सो क्लास, क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। तो ये क्लास का ओपनिंग हो गया और ये क्लास का क्लोजिंग हो गया। इनसाइड दिस वी हैव क्रिएटेड मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाउ टू क्रिएट अ मेथड संतोष, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वॉइड। स्टैटिक वॉइड मेन वेरी गुड, वंस अगेन एंड पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वॉइड। स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ, देन हियर इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, हाँ हियर इज अ एस कैपिटल, देन ओके। स्ट्रिंग ए आर जी एस, और वी कैन से स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग ए आर जी एस लिख लेना आपको अगर लगता है तो। स्ट्रिंग, देखो देखो जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। फिर इसका ही ओपनिंग क्लोजिंग, इसका ही ओपनिंग, इसका ही क्लोजिंग। तो हाउ टू क्रिएट अ मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ओपन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हाँ स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ओके, उसका उसकी बॉडी है क्या सर ये हम हाँ जो भी हाँ बता रहे हैं उसकी फिर हाँ उसके उसकी अंदर एक बॉडी, बॉडी है? हाँ उसकी भी बॉडी होगी ना, ओके कि लाइन ओके कोड, ओके। कोड का में कहाँ पे लिखना है, इसके अंदर लिखना है ना मेथड के अंदर, यस यस तो इसकी बॉडी होगी। राइट। हाँ बताओ, हाउ वी कैन क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हाँ स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हाँ ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। वेरी गुड, वन सेकंड, हाउ टू क्रिएट अ मेथड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम्म स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हम्म स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाउ टू क्रिएट अ क्लास। क्लास क्लास नेम हम्म ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाउ टू क्रिएट अ मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाउ टू क्रिएट अ क्लास 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 नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाउ टू क्रिएट अ मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हम्म स्क्वायर ब्रैकेट हम्म ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अच्छा स्ट्रिंग का एस कैपिटल है क्या। यस कैपिटल है। हाँ वन सेकंड, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। क्लास क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। वेरी गुड, देन हाउ टू क्रिएट अ मेथड। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम्म स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हम्म ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो जैसे मैंने बताया था कि जावा में लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है क्या, टॉप टू बॉटम। जावा में अप्रोच क्या होती है, टॉप टू बॉटम होती है, बॉटम अप। बॉटम से बॉटम बॉटम अप होता है सर। राइट, क्यों बताया मैंने, क्योंकि मैंने बताया था एक बॉस फंक्शन होता है हमारे पास, बताया था कि यस हमारे पास यस। एक बॉस फंक्शन होता है जो बाकी के क्लासेस, बाकी का जो कोड है वो उसको डिसाइड कंट्रोल करेगा। करेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से वो हाँ, करता है। यानी वो बॉस डिसाइड करेगा कि कौन 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 सा रन होना चाहिए, कौन सा रन नहीं कौन होना सा? चाहिए। यस एग्जैक्टली हाँ। तो ये है बॉस फंक्शन हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, क्या है ये, बॉस फंक्शन। समझ में आ रहा है ये क्या है, बॉस फंक्शन। ओके। अब बॉस को कैसे यूज करना है वो हम आगे धीरे धीरे जाके समझेंगे, ठीक है, ये बॉस फंक्शन है।
फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है? फंक्शन, अच्छा फंक्शन क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम देखो ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी मैंने बताऊंगा कि आप और इसमें कंफ्यूज होगे। ओके, तो ये होता है बॉस फंक्शन, धीरे धीरे समझेंगे आगे आराम आराम से सर ये। थोड़ा इसको राइट अप करूँ क्या सर मैं? थोड़ा लिखो क्या? क्या हो गया? लिखता हूँ सर इसको मैं थोड़ा, 1 मिनट। हाँ कर लो। अब मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, क्या बोलते हैं संतोष, मैं आपको चलेगा एक पीडीएफ भेज देता सर। हूँ, ओके क्या सर। आराम से टाइम निकाल के आराम से लिख लेना, ठीक है? ओके ओके सर, ठीक है, फाइन। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसको समझने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझता है। ये पूरा लाइन समझने के लिए ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमें पूरा जावा पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है? यानी जैसे जैसे जावा के टॉपिक्स क्लियर हो गए तो ये एक एक कीवर्ड्स के हमें आंसर पता चलेगा। अच्छा ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये सारे हमें पता चलेगा जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपको डायरेक्टली ये नहीं समझ में आएगा और समझना भी नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है, इतना सारा आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये सारा समझने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है। तब एक एक चीज इसमें समझता है। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है, ये पहले मत समझो, आराम से समझो। ये ऐसा समझो कि ये क्या है, बॉस फंक्शन है। क्या है? बॉस फंक्शन। समझ में आ रहा है? क्रॉस फंक्शन। वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने लिख लिया कि लाइक हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। अब हम हमारा आज का फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखते हैं विच इज अ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इसके अंदर हमें कोड लिखना पड़ेगा, जो भी आपको कोड लिखना है, यू आर गोइंग टू राइट इट इनसाइड इनसाइड दिस क्लास, इनसाइड दिस मेथड। तो यहाँ पे हम आते हैं और आज हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे विच इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है? चलो अब यहाँ पे आते हैं बात की, देखो अब यहाँ पे हमने तो समझ लिया कि जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, कि सबसे पहले क्लास, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर जो भी लिखना है वो लिखो, मेथड के अंदर आएगा आपका कोड। और एक बात समझना है कि जावा में एग्जीक्यूशन कैसा होता है, जावा में जो कोड है वो एग्जीक्यूट कैसा होता है, जावा में जो कोड है वो एग्जीक्यूट कैसा होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, लाइक आई विल ओपन माई नोट पैड। इनिशियली नोट पैड में ही प्रोग्राम लिखो। ओके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सो हियर आई विल जस्ट ओपन एनी फाइल, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम। स्क्रीन विजिबल है? यस विजिबल है सर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जावा जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? First create the class, हाँ, then हाउ टू create क्रिएट the अ क्लास, method inside the class, हाउ टू क्रिएट अ then क्लास। you can write the class, then inside that class name, opening brace, closing brace, then inside that uh, s- हाँ, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। static static void main हाँ, string, square आर्ग्यूमेंट। bracket closing हाँ। brace, हम्म। and closing brace. देखो संतोष, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अभी भी प्रॉब्लम, अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी बताओगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आप आराम से बताओगे। अबे ट्राई करो, यानी बोलने का ट्राई करते हो, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आंसर देना वो नहीं है, ठीक है? आंसर आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा। क्लास, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, क्लास क्लास नेम, समझ में आ रहा है? हाउ टू क्रिएट अ Class क्लास, class name, yes. क्लास नेम, तो Class मैं बोलता हूँ class name. इसको फर्स्ट, ठीक है? चलता। Yes, yes. क्लास नेम फर्स्ट, क्या है ये? फर्स्ट है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको, फर्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर अच्छा ये बना लिया क्लास, इससे क्या इतना करने से हो जाएगा? तो सर इसलिए इसकी और उसकी बॉडी भी लिखनी पड़ेगी, जैसे मेथड इसकी लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो इसके अंदर क्या आएगी? मेथड आएगी, क्या आएगी? मेथड आएगी। तो क्या आएगी? मेथड पब्लिक। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आएगी। हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन इसके वॉइड अंदर मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, args, स्ट्रिंग ar ये आर्ग्यूमेंट्स, कैपिटल, ओके, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, देन वो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, देन ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, आ गया? यस तो ये देखो, ये जो है ये क्लास का है, दिख रहा है? ये क्लास का ओपनिंग यस क्लोजिंग, और ये मेथड का ओपनिंग क्लोजिंग, दिख रहा है? मेथड का। अब इसके अंदर हमें लिखना है लाइन ऑफ कोड, जो भी आपको लिखना है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइक आई विल जस्ट राइट, अगर आपको प्रिंट करवाना है, अगर आपको कुछ आउटपुट करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हियर आई विल जस्ट राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, सिस्टम का एस कैपिटल, देन जस्ट ओपन लाइक दिस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सबसे पहले सिस्टम का एस का कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन,
and inside this in and just open a parenthesis, and inside this in double quote, okay, just pass hello world, okay, and put a semicolon at the end. सेमीकोलन ना, ये देखो सेमीकोलन, सेमीकोलन अगर नहीं दिया तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सेमीकोलन इज लाइक आपने ये लाइन यहाँ पे लिख के खत्म की है, जैसे हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये एज अ फुल स्टॉप वर्क करता है। तो यहाँ पे आपने जब भी लाइन खत्म करोगे लिख के, तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। समझ में आ रहा है? यानी सेमीकोलन लगाना है। तो सिस्टम ये डॉट सिर्फ आउट, प्रिंटिंग के लिए क्या सर? हाँ प्रिंट के हर लिए, दिस इज हाउ टू प्रिंट, ये प्रिंट के लिए। तो अगर आपको प्रिंट करवाना है कुछ जावा में, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन ओपन द पैरेंथेसिस एंड इन डबल कोट पुट हेलो वर्ड एंड देन सेमीकोलन। ओके, तो ये हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा हमारा जावा का। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये तो मैंने प्रोग्राम लिखा, अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सेव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये जो प्रोग्राम ओके लिखा, ये हमें सेव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये प्रोग्राम लिखा, अब इसको देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, आप जब भी, अभी तो हमने स्टार्ट किया हमारी जर्नी, तो आप क्या करो, एक फोल्डर बना लो। किसके अंदर? तो मैं सी के अंदर ही बनाओ। सी के अंदर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना देता हूँ सी के अंदर, ताकि आप जो भी कोड लिखेंगे फोल्डर के अंदर जो फाइल है वो सेव करेंगे। तो हियर आई विल राइट लाइक जावा प्रोग्राम्स। ओके, तो ये फोल्डर है, यहाँ पे हिट एंटर। तो मैंने फोल्डर बनाया जावा प्रोग्राम, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो इस फोल्डर के अंदर जो है, मैं अभी वो जो फाइल हमने लिखी है उसको सेव करूंगा। जो फाइल हमने लिखी है, ये इस फाइल को मैं सेव करूंगा उस फोल्डर में जहां पे मैंने बनाया। तो वो सर, वो फोल्डर, नोट पैड फाइल है क्या? क्या बोला? नोट पैड फाइल है क्या वो? हाँ, नोटपैड फाइल है। अभी सेव कैसा करना है, यहीं पे कहानी अधूरी है यार। अधूरी कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी तो मैंने, अभी तक हमने कुछ समझा नहीं, हमने तो कोड लिखा बस। इसको और समझो कि जावा में एग्जीक्यूशन कैसा होता है। स्टेप टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। अच्छा, हमने समझा कि कंपाइलर क्या होता है एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, राइट? समझ में आ रहा है? समझा ना, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सोर्स कोड। क्या होता है? सोर्स कोड। सोर्स कोड होता है। हाँ, अब ये जो हमने लिखा है, वॉट एवर वी हैव रिटर्न, ये क्या है? सोर्स कोड है। क्या है? सोर्स कोड। सोर्स कोड। अच्छा, अब सबसे पहले सोर्स कोड हम किससे पास करते हैं? कंपाइलर को। कंपाइलर से, राइट? तो सबसे पहले ये जो सोर्स कोड है हम पास कर देंगे कंपाइलर से। सपोज वी हैव दिस कंपाइलर हियर। अच्छा, कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? बाइट बाइट कोड में। कोड। बाइट कोड किसमें? बाइट कोड। बाइट कोड। डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता है, यहाँ पे बाइट कोड में जनरेट करता है। अच्छा, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या, सोर्स कोड को किससे पास किया? ये हो गया कंपाइलर फर्स्ट को स्टेप। कंपाइलर में बाइट कोड में। हाँ, अब कंपाइलर के बाद में किसको, अब इस बाइट कोड को किससे पास करेंगे? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर से, राइट? तो हो गया इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर के बाद में इंटरप्रेटर को पास कर देंगे। अब इंटरप्रेटर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड को? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में। तो यहाँ पे बाइनरी। एक बाइट कोड जनरेट होता है। जैसे जावा फॉलो अ वोरा प्रिंसिपल। वोरा यानी राइट वंस रन एनीवेयर। तो जैसा सी लैंग्वेज में जो मशीन कोड जनरेट होता है, आप उस मशीन कोड को दूसरे मशीन पे नहीं चला सकते। तो यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होता है। तो अगर ये बाइट कोड मैं दूसरे मशीन में भी भेज दूं, सपोज मशीन है मेरी, सपोज i5 की, तो ये बाइट कोड अब हमने देखो i5 में भेज दिया। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने बाइट कोड तो इंटरप्रेटर से पास कर देगा जो भी है यहाँ पे जो है। ये जो कोड है इसको इंटरप्रेटर से पास कर देंगे फिर से एक बार, आयन। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा फिर इंटरप्रेटर इसको? बाइनरी में। समझ में आ रहा यस। है? राइट। तो आप कोड जो है वो शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, सी में हमारे पास पोर्टेबिलिटी नहीं होती, कोड आप शेयर नहीं कर सकते। एक मशीन का कोड दूसरे मशीन में नहीं चला सकते। अब इंटरप्रेटर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, और बाइनरी कन्वर्ट करके मशीन को वो भेज देगा, और मशीन को जो भी आउटपुट है आपका, वो आपको दिखने लग जाएगा। तो सपोज जीरो जीरो 1010, आप कुछ भी, यानी दिस इज द हाउ द मशीन लैंग्वेज लुक लाइक। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इस जो सोर्स कोड है उसको किससे पास करना? कंपाइलर से। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ये सोर्स कोड है इसको किससे पास करना? कंपाइलर से। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, राइट?
हो गया फर्स्ट स्टेप। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मतलब जितने भी हम अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे थे, हाँ। फिर वो दूसरे डिवाइस पे रन या फिर देखेंगे नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक ऐसा क्यों होता है कि लाइक शेयर नहीं करते? शेयर नहीं, देखो अब आपने कोड जो है सी का मतलब क्या है कि आपने आपके पास सोर्स कोड है, ठीक है, आपने वो पास किया कंपाइलर से, ठीक है, किया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, बाइनरी मिलेगा, राइट। बाइनरी, यस। ये बाइनरी कोड है, ठीक है। तो अगर ये बाइनरी कोड, ये जो बाइनरी कोड जनरेट हुआ है ये वाला, अगर मैं दूसरे मशीन में भेजता हूँ तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है ध्यान में, ओके। क्योंकि ये बाइनरी ओके। कोड किसके हिसाब से जनरेट हुआ है, मशीन के हिसाब से ना। यस यस। अब ये मशीन के हिसाब से जनरेट, आप उसको अलग मशीन में नहीं चला सकते। तो जावा ने केवल हम डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे, क्या, बाइट कोड। तो उन्होंने एक बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया, अब उसको एग्जीक्यूट भी कौन कर रहा है, मशीन नहीं कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट मच कौन कर रहा है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट। अब बाइट कोड को एग्जीक्यूट कौन करेगा, इंटरप्रेटर, और उसको बाइट कोड को कन्वर्ट किस में कर देगा, बाइनरी में। समझ में आ रहा है। तो बाइट कोड आप यहाँ इस इंटरप्रेटर से भेजो, i3 के इंटरप्रेटर से भेजो, i4 में भेजो, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंटरप्रेटर सही सेम ही होता है इसके लिए। तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है कोड, ना कि आपका मशीन। तो इसीलिए हम ये जो बाइट कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है कंपाइल के बाद, हाँ आप इसको अलग अलग मशीन में भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है। ओके सर। हाँ तो ये होता है यहाँ पर, दिस इज व्हाट इज इशू। ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, कि इसको कंपाइलर से पास करना, राइट, राइट ना। और यस सेकंड सेकंड स्टेप क्या हो गया, इसको इंटरप्रेटर से पास करना। समझ में आ रहा है। यस। अच्छा। तो जावा में कोड एग्जीक्यूट कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में। फर्स्ट इज कि इसको कंपाइलर से भेज दो, सेकंड इज इसको इंटरप्रेटर से भेज दो, राइट। राइट सर। दो ही स्टेज है, और कहीं भेजना है क्या, और कहीं पास करना है, नहीं। फर्स्ट में हमें कंपाइलर से पास करना है, सेकंड में क्या करना है, इंटरप्रेटर से पास करना, उसके बाद कहीं इंटरप्रेटर। पास करना है, नहीं करना है। तो इसीलिए जावा में एग्जीक्यूशन कितने स्टेप में होता है, हाउ द जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट। दो सबसे पहला दो स्टेप, स्टेप्स होते हाँ हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंपाइलेशन, क्या है, कंपाइलर, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब होता है कोड को कंपाइल करो। क्या होता है, कंपाइलेशन का मतलब होता है कोड को कंपाइल करो। कंपाइल करो, और लाइक कंपाइल कंपाइल द कोड और पास द सोर्स कोड फ्रॉम कंपाइलर। समझ में आ रहा है। सर। कंपाइलर का कंपाइलेशन का मतलब होता है कि कंपाइल जो भी सोर्स कोड है उसको कंपाइलर से पास करो या कंपाइल करो। कंपाइल करने का मतलब ही क्या होता है, कि उसको कंपाइलर से पास कर दो। समझ में आ रहा है। कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि यस। इस जो सोर्स कोड है, देखो इसीलिए मैंने बोला पास द सोर्स कोड फ्रॉम द कंपाइलर। तो ये जो सोर्स कोड है इसको कंपाइलर से पास कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंपाइलेशन। फर्स्ट स्टेप कंपाइल क्या हो द गया, कोड। कंपाइलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपाइलेशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। फर्स्ट स्टेप इज कंपाइल कंपाइलेशन का कंपाइलेशन। मतलब क्या होता है, कंपाइल द कोड और कंपाइल पास द द कोड। सोर्स ओके, कोड फ्रॉम वेरी कंपाइलर। गुड, वेरी गुड, कंपाइल द कोड। सेकंड स्टेप इज, इंटरप्रेटर से पास हाँ करना है उसको। इंटरप्रेटर से पास करना है। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या करता है, उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, राइट। कि जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है वो मशीन एग्जीक्यूट करती है क्या, नहीं, कौन एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है और उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। समझ में आ रहा है। यस, बाइट कोड को बाइनरी में कन्वर्ट बाइनरी करता में है। कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। तो इसीलिए सेकंड स्टेप में क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन, सेकंड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है। एग्जीक्यूशन कौन करता है, यस। इंटरप्रेटर। अब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या इंटरप्रेटर। होता है, एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द बाइट कोड, और सेम में पास पास द बाइट कोड फ्रॉम इंटरप्रेटर, राइट। समझ में आ रहा है। अब इंटर यस सर। इंटर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, कि एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करो इस प्रोग्राम को। अब एग्जीक्यूट कौन करता है, इंटरप्रेटर। एग्जीक्यूट द बाइट कोड और पास द बाइट कोड फ्रॉम इंटरप्रेटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, कंपाइलेशन कौन करता है, हु डज कंपाइलेशन, कंपाइलर। कंपाइलेशन कंपाइलर कंपाइलर करता है कौन करता और है, एग्जीक्यूशन कंपाइलर। इंटरप्रेटर करता है। वेरी गुड, कंपाइलेशन कौन करता है, कंपाइलर।
एग्जीक्यूशन कौन करता है? इंटरप्रेटर। वन सेकेंड, हाँ। व्हाट इज व्हाट लाइक what is the step to execute a Java program? First is First is compilation, compilation. First second is is once execution. again. First is First is compilation, very good. First second is is once again. First execution. First is compilation. compilation, Second, execution. who does compilation? Compiler, Compiler. Who does execution? interpreter, Who does compilation? compiler, Who does execution? interpreter. What is Java program structure? Java class name, opening brace, closing brace, हाँ, and then inside that method, and public static void main string arguments, square bracket, opening brace, closing brace. हाँ. Then how? What is the step to execute Java program? First step is a compilation, second is a execution. Who does compilation? Compilation done by compiler and हाँ. execution done by interpreter. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अब हमने ये बात कर ली कि ये होता है इसके अंदर. अच्छा, जो हमने सोर्स कोड की बात करी, तो हमने ये जो लिखा है ये सोर्स कोड है, राइट? जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है सोर्स कोड ही तो है, राइट? है ना? सोर्स कोड है. Yes, तो सोर्स कोड ऑलवेज प्रेजेंट होता है किसमें? डॉट जावा एक्सटेंशन में. किसमें प्रेजेंट होता है? डॉट जावा Java extension. एक्सटेंशन. ओके, इट इज एक्सटेंशन. डॉट जावा, अगर आप जो भी सोर्स कोड लगाते हो वो किसमें प्रेजेंट होता है? Or डॉट Java. जावा एक्सटेंशन किसमें प्रेजेंट होता है? डॉट जावा एक्सटेंशन. सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है? डॉट जावा एक्सटेंशन. किसमें Java प्रेजेंट होता है? extension. डॉट जावा. Dot Java extension. वेरी गुड. तो अभी तो हमने ये फाइल बनाई है, ये फाइल है. इसमें हमने लिखा है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एंड हेलो वर्ड डबल कोट में वी हैव एडेड अ सेमीकोलन. फाइन. अब इसको करते हैं सेव. तो ये सोर्स कोड है. ये सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है? डॉट जावा. Source code dot Java extension में होता है. हाँ. अब ये फाइल तो हमने लिखी है, अब आती है बात इसको सेव करने की. तो अब सेव इसको कैसे करेंगे? देखो, जो भी आप इसको सेव करेंगे, तो जो भी आपका क्लास नेम है वही आपका फाइल नेम होगा. समझ में आ रहा है? जो भी आपका क्लास नेम वो क्या होगा? Okay. फाइल नेम होगा. समझ में आ रहा है? जो भी क्लास नेम वो क्या होगा? फाइल File नेम. name होगा भाई. तो आप इसको सेव करेंगे, तो मैं इसको सेव करता हूँ. ओके. First dot Java. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे इसको सेव कहाँ पे करता हूँ? आई विल जस्ट गो इन सी एंड जावा प्रोग्राम्स. जो भी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, ठीक है? और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम देता हूँ फर्स्ट डॉट जावा. ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? और इसको कर देते हैं सेव. Yes sir. हो गया सेव. अब आते हैं वापस फाइल में. मैं फाइल मैनेजर में आता हूँ और यहाँ पे जावा प्रोग्राम्स के अंदर आता हूँ. आगे जावा की फाइल दिख रही है. Yes. Yes. अभी देखो इसके ऊपर आप लोगो दिख रहा है, बिकॉज हमने डॉट जावा लगाया है. अगर आप डॉट जावा नहीं लगाते तो आपका आता ही नहीं ये. क्योंकि आप अगर उसको, ये देखो, आप इसमें अगर हॉवर करते तो क्या बोल रहा है? टाइप क्या बोल रहा है? उसका टाइप दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? देखो टाइप क्या है. Java source file दिख रहा है. हाँ, जावा सोर्स फाइल. ये सोर्स कोड है. Yes. Yes. इसलिए ये सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है? जावा में. डॉट जावा में किसमें प्रेजेंट होता है? Dot Java. डॉट जावा. तो इसको अगर प्रॉपर्टीज में देखें तो डिटेल्स, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट डॉट जावा, जावा सोर्स फाइल. ओके, ये तो जावा की सोर्स फाइल है. ये है जावा फाइल बना ली. अब अच्छा, ये तो फाइल तो बना ली, फाइल तो सेव कर ली. बट ये जो ये तो चलो सोर्स कोड हमारा डन है. अब इसको पास भी करना पड़ेगा ना हमें, इस कंपाइलर से इससे कंपाइलर से इंटरप्रेटर से पास तो करना पड़ेगा. हमने सोर्स कोड को रेडी कर दिया, अब इसको पास करना पड़ेगा. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Compilation. कंपाइलेशन. कंपाइलेशन का मतलब होता है इस कोड को जो भी लिखा है उसको कंपाइलर से पास करो. अब कैसे करते हैं? ये तो हमने फाइल सेव कर लिया. अब आते हैं रिटर्न. यहाँ पे जस्ट गो इन सर्च बॉक्स एंड टाइप cmd कमांड प्रॉम्प्ट. समझ में आ रहा है? तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आई विल जस्ट जूम इट. दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट? Yes. अब यहाँ पे हमें कोड एग्जीक्यूट करना है. कैसे? सबसे पहले मैं, अच्छा, मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? सी के अंदर. C drive में. सी के अंदर जावा प्रोग्राम्स Program के अंदर. file. जावा प्रोग्राम्स के अंदर ना, सी के अंदर जावा प्रोग्राम्स. समझ में आ रहा है? इसके अंदर मेरी फाइल है. ठीक है.
सी के अंदर, जावा प्रोग्राम्स के अंदर मेरी फाइल है ना। अब अभी सर ये फाइल हमको हमने हमको बनानी पड़ती है ना, मतलब सी इसके अंदर हाँ जो वो एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जावा हाँ प्रोग्राम्स नाम से, हाँ, उसके फिर अंदर ये उसमें। फाइल सेव करना है, समझ में आ रहा है। ओके ओके ठीक। क्योंकि आप गिटहब वगैरह पे अपलोड करोगे आगे जाके कोड, तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये है। अब इसके अंदर मेरा फोल्डर है यार, मेरी डायरेक्टरी क्या है, सी के अंदर, जावा प्रोग्राम्स के अंदर मेरी फाइल पड़ी हुई है, समझ में आ रहा है। यस अब मैं अभी यहाँ पे देखते तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, सी के अंदर, यूजर के अंदर, एसपी के अंदर मैं खड़ा हूँ। ये डायरेक्टरी यस है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, एसपी। तो मुझे मुझे पीछे आना है ना। मेरी फाइल तो, फोल्डर तो पीछे है, मैं तो बहुत आगे खड़ा हूँ। दिख रहा है ये एसपी, सी के यस अंदर, यूजर के अंदर, एचपी। तो अगर आपको वापस आना है, किसी फोल्डर से बाहर आना है, तो जस्ट टाइप cd स्लैश, दिख रहा है, cd स्लैश। यस तो जैसे ही यस डालोगे तो आप रिटर्न आ जाओगे किसके अंदर, अब देखो मैं सी के अंदर आ गया, दिख रहा है सी यहाँ पे। यस सर। अब सी के अंदर मेरी फाइल फोल्डर है, सी के अंदर एक फोल्डर है मेरा, राइट। ये है, देखो सी सी के यस अंदर है, ये फोल्डर है। तो जब भी देखो, जब यस भी आपको कोई फोल्डर खोलना है, किसी फोल्डर के अंदर जाना है या बाहर आना है, आपको सीडी लगाना है, समझ में आ रहा है। आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है या बाहर आना है, तो आपको चेंज सीडी लगाना है। डायरेक्टरी। तो अब अच्छा, मुझे अभी अंदर अंदर जाना है, जो जावा प्रोग्राम्स है उसके अंदर जाना है। तो आई विल जस्ट राइट cd स्लैश जावा प्रोग्राम्स। ओके। सबसे पहले मुझे किसके अंदर जाना है, cd स्लैश, यानी मुझे अंदर जाना है किसके, जावा प्रोग्राम्स के। तो यहाँ पे जावा प्रोग्राम्स, हिट एंटर। तो आ गया मैं जावा प्रोग्राम्स के अंदर। यस सर। अब जावा प्रोग्राम्स के अंदर और कोई फोल्डर है मेरा, है फर्स्ट डॉट जावा नाम ये से तो फाइल है। फाइल है ना, फोल्डर तो नहीं है। नहीं नहीं और कोई, और के फोल्डर के अंदर घुसना है क्या, हमें नहीं घुसना है, क्योंकि आप तो नहीं। पहले आ गए ना सी के अंदर, जावा प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ पे फाइल है, तो अभी हमें कोई फोल्डर नहीं खोलना है, राइट। तो यहाँ राइट। पे हमारा काम खत्म होता है, अब कोई सीडी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में फाइल है। तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं कंपाइलेशन, फर्स्ट स्टेप इज पाइलेशन। कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर। ओके। अब कंपाइलेशन जैसे हमें, मैंने बताया था कि हमें जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करना पड़ता है, राइट, जेडीके, राइट। यस। जेडीके में क्या क्या ये आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, उसमें जावा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर हाँ, और रन टाइम एनवायरनमेंट आता है। यस। तो कंपाइलर जैसे मैंने बताया था, वहां पे जावा सी मिलता है, जावा सी, यस यस जावा जावा से। सी, जेवीएम एंड जेआरई, राइट। यस। तो ये जावा सी एक कमांड है, अगर आपको कंपाइल करना है प्रोग्राम, तो आपको लिखना पड़ता है जावा सी इज कमांड। सो हाउ वी कैन कंपाइल अ प्रोग्राम, सबसे पहले लिखना है जावा सी। जावा सी का मतलब क्या होता है, कंपाइल करो, समझ में आ रहा है, कंपाइल। ओके। जावा सी का मतलब क्या होता है, कंपाइल। सारा स्मॉल है, जावा सी का मतलब होता है कंपाइल। बट किसको करो, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। तो फाइल जावा सी, आवर फाइल नेम इज व्हाट, फर्स्ट डॉट फर्स्ट डॉट जावा। जावा। यानी इस फर्स्ट डॉट जावा को क्या करो, कंपाइल करो, समझ में आ रहा है। यस। जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। अब यहाँ पे आपका फाइल, आपका नाम फर्स्ट ही नहीं होगा, अलग अलग नाम होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, समझ में आ रहा है। यस हाउ सर। टू कंपाइल प्रोग्राम, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जावा जावा सी सी फाइल नेम डॉट जावा। file name dot java. So it is how you can java c here. It is how you can compile a program, java c file name dot java. तो यहाँ पे हमारा फाइल नेम क्या है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट फर्स्ट डॉट जावा। जावा, एंटर। तो देखो, अब जैसा ही हमने इसको कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद सपोज यहाँ पे वापस आते हैं, कंपाइल किया, अब कंपाइल करने के बाद ये सोर्स कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में। हो गया, होगा ना, यहाँ पे सोर्स कोड के बाद में ये करा, ये यस सोर्स कोड है, यस इसको कंपाइल कंपाइल से पास करने तो किस में कन्वर्ट हो यस जाएगा, बाइट कोड में। समझ में आ रहा है, समझ में आया, तो कंपाइल किया हमने ना। यस 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 सर। अब कंपाइल करने के बाद बाइट कोड की फाइल आना चाहिए, तो अगर हम जाते हैं हमारे फोल्डर में वापस, तो देखो दिख रही है बाइट कोड की फाइल। हाँ यस। इसको अगर ओपन करते हैं, तो इसको कोई पढ़ नहीं सकता, बिकॉज ये बहुत अलग ही कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इसको पढ़ नहीं पाएगा ये क्या लिखा है। तो ये होता है कि हमारा जो सोर्स कोड है, जब भी आप कंपाइल करेंगे तो आपके पास दो फाइल होगी, एक होगी सोर्स कोड की, एक होगी बाइट कोड की, समझ में आ रहा है। यस सर।
अब इस बाइट कोड की फाइल को हमें इंटरप्रेटर से पास करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में। राइट। अब अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप इन लाइक फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन, राइट? जावा जी फाइल नेम डॉट जावा। फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन, राइट? यस। सेकंड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब एग्जीक्यूट करना है, अब कंपाइल तो हो गया, अब एग्जीक्यूट करना है, तो हाउ टू एग्जीक्यूट जावा फर्स्ट, ओनली जावा फर्स्ट। ओके, जावा फर्स्ट, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। अगर आपने लिखने में कुछ गड़बड़ किया तो कंपाइलर पकड़ लेगा, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा अगर आपने लिखने में कुछ प्रॉब्लम किया है। अगर आपने सही लिखा है तो उसके बाद में आपको ये आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन जावा सी फर्स्ट, सॉरी जावा फर्स्ट, ओनली जावा फर्स्ट, हिट एंटर टू सी वी कैन सी अवर हेलो वर्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब मैंने बताया था कि सोर्स कोड किसमें, सॉरी सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है, डॉट जावा। सोर्स कोड किसमें हाँ, प्रेजेंट होता है, डॉट जावा। डॉट जावा। और बाइट कोड किसमें प्रेजेंट होता है, बाइट कोड हमारा प्रेजेंट होता है डॉट क्लास। समझ में आ रहा है? डॉट क्लास, ये डॉट क्लास फाइल होती है। सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है, डॉट जावा। डॉट डॉट जावा। बाइट एंड कोड बाइट डॉट कोड क्लास। डॉट क्लास। अभी आते हैं, देखते हैं कि हम बस बताए जा रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा है। अगर इस पे हवर करता हूँ, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टाइप क्या है उसका, क्लास फाइल दिख रहा है सर। क्लास फाइल है, तो बाइट कोड किसमें प्रेजेंट होता है, क्लास बाइट कोड डॉट क्लास। क्लास डॉट क्लास में होता है। हाँ, वेरी गुड। तो ये हमने लिखा आज हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम। समझ में आया? सर समझा। हाँ, वेरी गुड। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाओ, उसके बाद में प्रोग्राम लिखो, जैसे मैंने बताया वैसा ही करना। ठीक है, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो और एक बात, मैं आपको ये जो है पीडीएफ ही भेज देता हूँ, ठीक है? और ताकि आप इसको लिख लो। ओके, तो मैं आपको एक जो ये जो पीडीएफ है, मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे, इसको देखो।